Hello everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Dr. Neha. I am beyond excited to welcome you to something that is not just a course, not just a lecture series, but a movement for every serious NTA NET scholar, NTA NET aspirant for the subject English. I welcome you with all my heart to the series that I'm going to launch, WinNet Series 2026, to be launched by Dr. Neha for the December attempt of NTA UGC NET examination. Today is 5th of July and NTA NET June cycle has just got over 5 days back, and we are anticipating answer keys, we are anticipating good results. But now, without wasting much time, I am here to launch a movement through my lecture series, through my video lectures, and through the course, the WinNet 2026 series for all the serious aspirants of NTA UGC NET December examination. Now, most of you will ask me that why you have given it the name WinNet. WinNet because our English literature is all but full of metaphors, full of rhetoric devices. I chose this name because of the three illusions that it has. WinNet essentially stands for the winter cycle of the NET examination, because our examination will take place in the end by the end of the December or beginning of the January. So WinNet means the winter cycle of the NET at first place. Second, it means winning over your desire to qualify this examination, winning over your habit of procrastination, winning over your fears, and gaining and winning the confidence of qualifying the examination. I wish to seek a winner in you. So that is why I have named this series WinNet, the winter cycle of NET, and win. Win means winning over your desire of qualifying this examination. And third, WinNet stands for NET examination. WinNet, National Eligibility Test. That is your roadmap. That's a qualifying examination for you to become an assistant professor, to enter the academia. You must qualify this examination. So this exam, if you wish to qualify, I am here with my WinNet 2026 series. And on to add the cherry on the cake, I would like to highlight the very fact that this audio lecture series, these series that I am going to start from Chaucer, will not only be useful for the aspirants of NTA UGC NET examination, at once it will be useful for state PSCs like in Punjab, assistant professor examination or recruitment is going to happen. In Himachal Pradesh, it is going to happen. In Madhya Pradesh, it is going to happen, and it might soon happen in Haryana also. So all that state PSCs that ask you to clear the prelims and the mains examination, and the syllabi is just copied and pasted of NTA NET examination. So this series will be very, very useful for all the serious aspirants of the subject English, no matter their level, UG, PG, and if you wish to secure your position as an assistant professor and in some sort of legacy you want to form in this subject, for this area only, and even if you wish to continue with your research, you must qualify NET examination. So this series is just for you. I will specially make a playlist with the name WinNet 2026. So you just have to click on this playlist and all the video lectures will be there in front of you. वैसे तो on our YouTube channel we have been teaching for NTA UGC NET examination
state PSCs, TGT, PGT level examination for communication and interviews on our YouTube channel from past 1.5 years. But this series is specially designed to cover the main concrete canonical topics in this span of 6 months from July to January or December. In this span of time, we will cover almost all the important topics. So you just have to sit back and relax with a notebook in front of you, because you are viewing Dr. Neha's high level lectures for this examination. We have our video on language and linguistics is always on top. On Dalit literature, American literature, the videos are just doing so good, and that justifies the very fact that we have been able to serve you well. So another form of serving that we are ready to give you is our WinNet cycle. Please do like this video, because WinNet is not just a series, it's a promise, it's a movement in the literary academia, and it will be useful for you in many ways possible. छोड़िए, हम बात करते हैं अपनी एग्जामिनेशन के बारे में. आप खुद समझेंगे जब ये सीरीज स्टार्ट होगी कि किस वैल्यू, किस लेवल से ये स्टार्ट हो रही है. बेसिक टू एडवांस चलेगी और एडवांस टू मोर एडवांस्ड प्लेटफॉर्म पर ये सीरीज जाने वाली है. अब हमारा एम क्या है? आर प्राइमरी एम इज द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, is not only to deliver the content but to clear the concept in such a way possible that no matter what kind of assertion or reason they are giving you, you are able to comply, you are able to relate, you are able to eliminate in your answer and are able to understand the very fact, because we believe in the very fact that knowledge doesn't mean learning the complete works of Geoffrey Chaucer. Knowledge lies in the very fact that when you are aware of the 100-Year War, the Black Death, Peasants' Revolt, Lollard's Movement, and all those you are able to link and chalk down in the works of the father of English literature, Geoffrey Chaucer. That will be our approach. And if you are already a UG or PG graduate, so you will be able to understand all those videos, all these videos in a more methodological way. So our aim is to target a strategy. Our aim is to clear the concept. Our aim is to give you a methodological learning that in turn in return to make you a winner. So that's the aim of the WinNet series. Concept clarity, strategic learning, and result is winner. We will start from the very base of knowing the exam. So this examination, NTA UGC NET examination, NTA UGC NET examination. NTA is National Testing Agency that conducts the tests. UGC is the grants that provides grants. Earlier the NET exam was conducted by UGC only. UGC is University Grants Commission that commissions the high level institutes, whereas NET is a national eligibility test. NET जैसा ही होता है हमारा सेट एग्जाम. सेट एग्जाम इज प्राइमरीली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. हर स्टेट का अपना सेट होता है, बट क्वालिफाइंग नेट विल बी ऑफ 100% बेनिफिट, बिकॉज NET exam is national eligibility test that makes you eligible for 3 parameters. अगर आप UG कर चुके हैं, अपनी 4 years अपनी complete कर चुके हैं, आप अपनी PG complete कर चुके हैं with at least 55% of marks, although reservation के through percentage, minimum percentage change हो जाता है, वो आप देख लीजिएगा. लेकिन हमारी जो minimum percentage है वो 55% in your aggregate in your masters आपके पास होनी चाहिए, तब आप इस एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं. ये एग्जाम
2 साइकिल्स में होता है, एक जून साइकिल होती है, एक दिसंबर साइकिल होती है। और इस एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो ये 3 लेवल्स पर होता है। फर्स्ट लेवल होता है हमारा जेआरएफ। अगर आप एक टॉपर हैं, एक विनर है और आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, आप एम जेआरएफ का लेकर के चलते हैं, आप जेआरएफ बनना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड प्रोवाइड करेगी। आपको विद इन स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड आपको पीएचडी में एडमिशन लेना है। क्योंकि आप देख सकते हैं अब जो एपीआई स्केल आया है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, नेट मैंडेटरी है। नेट के साथ आपका एपीआई मैंडेटरी है और एपीआई में सबसे ज्यादा मार्क्स फेच कर लेती है पीएचडी। तो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आपको पीएचडी में एडमिशन की गारंटी कराता है। अगर आप अपना नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप प्लस पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और खाली पीएचडी ओनली भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, बिकॉज एपीआई स्कोर में मिनिमम सिलेक्शन में पीएचडी को मैंडेटरी किया गया है और हाई मार्क्स दिए गए हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स पीएचडी में एडमिशन लेना प्रेफर करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज में। तो इफ यू क्वालिफाई नेट इन ऑल दीज 3 कैटेगरीज, इन दीज 3 कैटेगरीज में अगर आप अपनी कट ऑफ के अकॉर्डिंगली क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका पीएचडी में एडमिशन इजीली हो जाता है। स्पेशली अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है, गवर्नमेंट आपको स्टाइपेंड देती है, एज लिमिट होती है, सर्टिफिकेट की भी टाइम लिमिट होती है। असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैलिडिटी है वो लाइफ टाइम होती है। उसके साथ साथ आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर अगर जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो इन तीनों चीजों के लिए आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करते हैं तो आप पीएचडी के लिए क्वालिफाई करते हैं, आप जेआरएफ फेलोशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं जिसमें आपको गवर्नमेंट स्टाइपेंड नहीं देगी। बट कुछ यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे हरियाणा की यूनिवर्सिटी की मैं बात करूं तो दे गिव यू यूआरएस, आपको जेआरएफ मिलता है अगर आप जेआरएफ क्वालिफाइड हैं, आपको यूआरएस मिलता है यूनिवर्सिटी रिसर्च स्कॉलरशिप, तो आप उसके लिए भी एम कर सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है जहां पे कट ऑफ रुक जाती है, वो होती है हमारी पीएचडी ओनली, जहां पर आप लायबल हो जाते हैं फॉर 1 ईयर वैलिडिटी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए। देखिए घूम फिर कर बात यही आती है कि अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका जो गेटवे है, आपकी जो थ्रेशहोल्ड है, आपका जो एंट्री गेट है, वो आपको नेट एग्जाम ही प्रोवाइड करता है, जो 2 साइकिल्स में होता है, जून एंड दिसंबर में होता है। वो 3 तरीके से, 3 वेज से आपकी एलिजिबिलिटी को श्योर करता है, जेआरएफ, नेट एंड पीएचडी। तो आप जेआरएफ के लिए एम करें, आपको स्टाइपेंड मिलेगा, आप रिसर्च करेंगे, पीएचडी करेंगे, क्लासेस लेंगे एंड गवर्नमेंट आपको मंथली स्टाइपेंड देगी जो एक अच्छा अमाउंट होता है। सी और विद जेआरएफ आप अच्छे इंस्टीट्यूशंस में भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन पीएचडी स्टेट यूनिवर्सिटी से करें या प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, ये भी एक अलग तरीके का मैटर है, तो इस पर भी हम अलग वीडियो में बात करेंगे। हाल फिलहाल में विननेट सीरीज की बात हो रही है, तो विननेट में हम अपने टारगेट एग्जाम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पर समझ लीजिए, ये एग्जाम में होते हैं, ये जो हमारा नेट एग्जामिनेशन है, वैसे तो स्टूडेंट्स हमसे ज्यादा समझदार हैं, वो जानते हैं कि पेपर कैसा होता है, बट द स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू सिट इन दिस एग्जामिनेशन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, उनकी कन्वीनियंस के लिए इन बेसिक डिटेल्स को मैं फिर से क्लियर कर रही हूँ। 3 आवर्स का ये एग्जाम होता है, सीबीटी मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब तक का सबसे अच्छा फीचर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पेपर 2 में हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं। इन टोटल हमारे पास 150 क्वेश्चंस आते हैं। 1 क्वेश्चन इज इक्वल टू 2 मार्क्स, तो 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। एक ही सिटिंग में ये पेपर होता है।
जिसमें हमें क्वालिफाई करना होता है, दोनों पेपर्स को मिला करके क्लब कर रिजल्ट आता है। पेपर 1 कॉमन पेपर होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, एनवायरमेंट, हायर एजुकेशन, हमारा आईसीटी, हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो इसका एक अलग सिलेबस होता है। पेपर 2 हमारा सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, आप किस सब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, हम हिस्ट्री से करते हैं, ज्योग्राफी से करते हैं, पॉलिटिकल साइंस से करते हैं, इकोनॉमिक्स से करते हैं या इंग्लिश से करते हैं। लेकिन क्योंकि हमारा टारगेट सब्जेक्ट इंग्लिश है, तो पेपर 2 जो हमारा है उसका सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग होना हमें बहुत जरूरी है। कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, विननेट सीरीज स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी और एंड तक जाएगी। हम हर टॉपिक पर बहुत अच्छे से लेक्चर सीरीज में बात करने वाले हैं। सी हमारा पेपर 2 का जो सिलेबस है, दैट सिलेबस कंप्राइजेस ऑफ दीज 10 यूनिट्स। और मेरे डियर स्टूडेंट्स, ये 10 यूनिट्स लगती है, 10 यूनिट्स ही पेपर 1 में है, 10 हेडिंग्स ही पेपर 2 में है। तो मैंने सिलेबस नहीं, हेडिंग्स वर्ड बोला है, दीज आर जस्ट हेडिंग्स, बट प्रेज्यूमेबली आपको सब कुछ पढ़ना है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है, थियोरी पढ़ना है, क्रिटिसिज्म पढ़ना है, कल्चरल स्टडीज पढ़ना है, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स पढ़ना है, इंडियन राइटिंग्स पढ़ना है, यूरोपियन राइटिंग्स पढ़ना है, रशियन राइटिंग्स पढ़ना है, अफ्रीकन राइटिंग्स पढ़ना है, अमेरिकन राइटिंग्स पढ़ना है। सो ये जो सिलेबस है ये सिर्फ हेडिंग है, लेकिन जो हमारा सिलेबस है वो काफी वास्ट है। तो हम यूट्यूबर्स आपके लिए हेल्पफुल कहां पर साबित होते हैं, चॉक डाउन करने में कि आपको कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, किन चीजों का ध्यान रखना है। अपने खुद YouTube प्लेटफॉर्म पर हम जिन जिन क्रोनोलॉजी की बात करते आए हैं वो हम अपने एक्सपीरियंस से करते हैं, समझ से करते हैं कि इन ऑथर को बार बार पूछा गया है, जैसे DH लॉरेंस, जैसे मुल्क राजानंद। तो इनकी जब हम बात करते हैं तो वहां पर आपको समझ आ जाता है इन वीडियो से कि कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है। तो सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा वास्ट है, इस पर भी एक वेल डिटेल वीडियो आपको मिल जाएगा। फिलहाल हमारा जो एनटी की तरफ से प्रिस्क्राइब सिलेबस है वो ये है, लेकिन इसमें लिटरेरी टर्म्स नहीं दिए गए, रेट्रिक नहीं है हमारी, इसमें प्रोसोडी नहीं है, हमारे और भी सब टॉपिक्स है, लिटरेरी मूवमेंट्स नहीं है जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इंग्लिश इन इंडिया लिख देना, हमें इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश भी आती हैं, जिसमें खुद ब खुद मोर देन 50 राइटर्स हैं। अमेरिकन लिटरेचर नहीं है, अफ्रीकन लिटरेचर नहीं है, पोस्ट कॉलोनियल नहीं है। तो ड्रामा पढ़ना है, ड्रामा कब से, गौरव डक से पढ़ना शुरू करना है और कहां तक पढ़ना है इसका कोई एंड नहीं है। क्या आपने इसको मेन जो हमारे राइटर है, आई एम फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ, मॉडर्न एज के ड्रामेटिस्ट हैं, वहां तक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ तक पढ़ना है, कहां तक पढ़ना है। पोएट्री को क्या हमें फिलिप लार्किन तक पढ़ना है या उससे भी आगे पढ़ना है। तो क्वेश्चन यहाँ पर आता है, इसमें दलित लिटरेचर मेंशन नहीं है, ब्लू ह्यूमैनिटीज मेंशन नहीं है, इसमें ट्रांसलेशन स्टडीज मेंशन नहीं है। तो सिलेबस हमारा बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। इसीलिए इस सीरीज की हेल्प से आप समझ पाएंगे कि आपको कितना और कैसे पढ़ना है और कहां से पढ़ना है। ऑब्वियसली दिस इज माय श्योरिटी दैट हम स्ट्रेटेजिक वे से पढ़ेंगे, हम यूनिट कंप्लीट करेंगे, उसके क्वेश्चंस करेंगे, PYQs करेंगे, पहले पढ़ेंगे फिर क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन देयर इज ऑलवेज स्कोप टू रीड मोर ऑन योर पार्ट, रिलाइंग ऑन अस कंप्लीटली, बिकॉज एट YouTube प्लेटफॉर्म वी कैन डिलीवर आवर हार्ट आउट, बट फिर भी कुछ ना कुछ रह जाता है। हर चीज को कवर करना इतना पॉसिबल नहीं होता है, हम टच अप ऑन कर सकते हैं लेकिन वेल इन डिटेल नहीं करा सकते हैं। तो आपको देयर इज ऑलवेज स्कोप टू रीड मोर। बट यस, वन थिंग आई एम श्योर दैट इफ यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, इफ यू सब्सक्राइब टू दिस प्लेलिस्ट, इफ यू अबाइड बाय दिस प्लेलिस्ट, definitely you are going to get a very good in-depth idea of this examination, क्योंकि starting strategy ही होगी PYQ एनालिसिस के साथ हम एज को पढ़ेंगे। ये भी हमारा एक स्टेप रहने वाला है इस सीरीज में। सिर्फ क्रिटिकल लेंस से पढ़ेंगे, वी विल नॉट ड्रिफ्ट हेयर एंड देयर, मोटी मोटी बात करेंगे लेकिन स्कोरिंग बात करेंगे, जिससे छोटी बात तो छोटा क्वेश्चन तो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। क्रोनोलॉजी पर फोकस करेंगे, हर ईयर हर अटेम्प्ट के साथ एग्जामिनेशन में शिफ्ट देखा जाता है। दिसंबर एग्जामिनेशन हमारा काफी टफ था,
जून एग्जामिनेशन इजी टू मॉडरेट था। ये जो शिफ्टिंग कल्चर है ये चलता आ रहा है एनटीए में। आई डोंट नो एजुकेशन सिस्टम का क्या होगा, बट हम एजुकेटर्स हैं, वी आर हेयर फॉर आवर स्टूडेंट्स। सो इफ यू वांट मी टू स्टार्ट दिस सीरीज एज सून एज पॉसिबल, डू कमेंट बिलो कि मैम स्टार्ट कर दो, आज से हम आपके साथ पढ़ने वाले हैं। सो दिस इज डॉक्टर नेहा, योर एजुकेटर, एंड आई वेलकम विद ओपन आर्म्स टू द विननेट 2026 सीरीज for December attempt of NTA UGC NET examination. If you want to know more about me, मेरे चैनल पर जाकर के देख लो, कितना कैसे कब पढ़ाती हूँ सब पता चल जाएगा आप लोगों को। स्टेट पीएससी के लिए बैठ रहे हैं तो भी रिलाई कर सकते हैं इन वीडियो पर, इस प्लेलिस्ट के ऊपर। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, आप किसी भी क्वेरी के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। and one thing more, this series, आप पूछोगे कि मैम इसका फी क्या रहेगा, इस कोर्स के चार्जेस क्या रहेंगे? दिस इज गोइंग टू बी द चार्ज ऑफ दिस सीरीज। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कमिटेड होगा, दिसंबर के लिए होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।